that also talks about the weather conditions that continue to remain in a state of bother as far as North India is concerned. So there has been a rain havoc in Himachal Pradesh. You can see these visuals. These are coming in from Shimla. This is due to incessant rains that we are seeing landslides majorly in the state of Himachal Pradesh that is not yet recouped from the past bout of the flooding situation. The water levels of the Beas River has now increased. That is once again this has happened, and the Beas River is flowing above the danger mark. In fact, the Shiv Mandir at the Summer Hill collapsed as a result of the heavy rainfall, and as of now 9 bodies have been retrieved. The local administration is also diligently working to clear the debris in order to rescue the individuals who may still be trapped. Like you can see on your screens, the rescue operations are still underway. This is because of the rising levels of the Beas River, and this is now flowing above the danger mark. The temple premises, like I was mentioning, had collapsed, because of which there have been 9 deaths that have been reported, and there are others who might just still be trapped under the debris. You can see locals there who pressed into action and who are trying to recover more and more people from inside the debris. And this is what we are picking up. This is what is happening as far as the rain havoc in Himachal Pradesh is concerned. This is, by the way, the second landslide in Shimla that we have got to know about as far as the state of Himachal Pradesh is concerned, even when the state hasn't really been able to get back to normalcy after the first bout of floods, after the first overflowing of the Beas Nadi. There is another such instance where, because of the rainwater, the Beas River has been flowing above the danger mark, and because of which there's been a second landslide. And due to the landslide, the temple premises, which we are talking about, the Shiv Mandir at the Summer Hill area of Shimla, that entire temple collapsed, because of which we are learning that 9 bodies have been recovered from that spot. My colleague Kapil Pandit is joining us on the broadcast. Kapil, सबसे पहले तो हम जो कपिल ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले हम ये जो विजुअल्स दिखा रहे हैं कपिल, इसके बारे में और क्या जानकारी दे सकते हैं? हम देख पा रहे हैं कि पुलिस पर्सनल, लोकल्स और वहाँ जितने एरिया में लोग हैं वो इस प्रोसेस को अभी अंजाम दे रहे हैं ताकि और जितने लोग दबे हुए हैं उनको रिकवर कर पाएँ. इसके बारे में सबसे पहले बताइए, और कब का ये हादसा, कब की घटना है ये? ये आज सुबह की घटना है. जिस तरीके से पूरे प्रदेश में मौसम फिलहाल खराब बना हुआ है, तो जगह जगह पर इसी तरीके के लैंडस्लाइड देखने को मिल रहे हैं. ताजा जो एक मामला है आज सुबह का है, क्योंकि आज सोमवार है, लोग शिव मंदिर जो है सुबह सुबह जाते हैं, तो ऐसे में लगभग 25 से 30 लोग वहां पर मंदिर में गए थे. और जब वहां पर मंदिर गए थे तो वहां एकदम से जो लैंडस्लाइड होता है और उसमें सारे लोग जो है दबे होने की वहां पर जो है आशंका है. और अभी तक 9 डेड बॉडीज जो है रिकवर वहां पर कर ली गई है. 9 डेथ्स कंफर्म हो चुकी है, और कुछ लोग उसमें जिंदा भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो उसमें लोग दबे होने की आशंका है उसमें से एक व्यक्ति की किसी को कॉल भी गई है. तो ऐसे में ये भी आशंका है कि उसमें काफी लोग जो है जिंदा भी है. दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शहर के जो ओल्ड बस स्टैंड के साथ फाकली एक एरिया लगता है, वहां पर जो मजदूर रहते थे, जो कच्चे मकान बनाकर वहां पर रहते थे, ढारे जिनको कहा जाता है, तो ऐसे में 15 के करीब ऐसे जो ढारे हैं जो वहां पर दब गए हैं, और उसमें लगभग 50 के करीब लोगों के फंसे होने की आशंका है. राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है पुलिस की सहायता से, लोकल लोगों के माध्यम से वहां पर ये जो है राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है, और लोगों को किस तरीके से बाहर निकाला जाए, और ये जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं. और मुख्यमंत्री ने भी इस पर जो है ट्वीट कर जो उनके परिजन है जिनकी जो है डेथ हुई है, उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की है. और पूरे प्रदेश के लोग जो है काफी डरे सहमे हुए हैं, और जो यहाँ पर सैलानी आता है वो काफी इस वक्त डर में नजर आ रहे हैं. जी कपिल, आपने बात की सैलानियों की. सबसे पहले तो उनकी आवाजाही पे कोई रोक लगी है क्या? और दूसरी बात है कि ये जो हम विजुअल्स दिखा रहे हैं लोगों को अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पे, वो तो बहुत ही ज़्यादा उफान पे है ब्यास नदी, और काफ़ी ज़्यादा पानी ऊपर तक आ गया है. तो क्या उस पर रोक लगी है टूरिस्ट इन्फ्लक्स में? और दूसरी बात है, कब की घटना आप ये बता रहे हैं? दूसरा लैंडस्लाइड है ये शिमला में.
जी बिल्कुल, अगर एडवाइजरी की बात करें तो इस तरीके की कोई एडवाइजरी फिलहाल तो जो है जारी नहीं की गई है। सिर्फ एहतियात बरतने को सरकार द्वारा कहा जा रहा है। जगह जगह पर जो नदी नाले हैं वो उफान पर है, डैम के गेट खोले जा रहे हैं और खतरा जो है लगातार मंडरा रहा है। और जो स्थानीय स्तर पर जो सहायता हो सकती है वो अपील की जा रही है कि जो सैलानी आ रहे हैं यहाँ पर उनकी मदद की जाए, किसी तरीके के उनसे पैसे ना लिए जाए यदि किसी के पास पैसे ना हो, और कुछ दिन तक जहाँ पर लोग हैं वहीं पर वो रहे ताकि किसी प्रकार का जो है जानी नुकसान ना हो। जी कपिल, और क्या जानकारी दे सकते हैं सराउंडिंग एरियाज के बारे में? शिमला बहुत ही हद तक इम्पैक्टेड है फ्रेश बाउट ऑफ रेनफॉल की वजह से। जितना ज़्यादा पानी हमें दिख रहा है, जिस स्तर पे ये पानी बढ़ा हुआ है उससे तो ये बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थिति दिख रही है अभी। जो अथॉरिटीज़ के ऊपर जो काम है वो किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं, और एडवाइजरी के आगे कितनी ज़्यादा रिलीफ पर्सनल्स को डिप्लॉय किया गया है ताकि ये जो जिस जगह की हम बात करें शिव मंदिर की, अभी तक ये बताया जा रहा है कि 9 बॉडीज रिकवर हुई हैं और भी लोगों के दबे होने का खतरा है, उसके बारे में कुछ अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, ये कोई शिमला की ही बात नहीं है, पूरे प्रदेश में इसी तरीके का भयानक मंजर है। मंडी कुल्लू की बात की जाए तो वहां पर पहले ही बहुत रौद्र रूप जो है ब्यास ने धारण किया है। जो छोटे छोटे नाले हैं वो भी काफी उफान पर है, जगह जगह पर बादल फट रहे हैं। अभी सुबह की ही घटना है, देर रात का मामला है। सोलन में 7 लोग जो है जिनकी डेथ कंफर्म हुई है, वहां पे लैंडस्लाइड हुआ, एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 3 परिवारों के 7 लोग की डेथ हुई है। और ऐसे ही मंडी की बात करें, कुल्लू की बात करें और खासकर शिमला की अगर बात करें तो अगले 3 घंटे तक रेड अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है। तो लोग यहाँ पर घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और जो HRTC है, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की जो बसें हैं, अभी तक कोई भी रूट जो है ठप नहीं किया गया है। ये कहा जा रहा है कि जिन रूटों पर बसें चल रही है उन रूटों पर लगातार बसें चली रहे, जहाँ पर रोड बंद है वो जो है फिलहाल वहां पर बसें रुकी हुई है। और शिमला की अगर बात करें तो यहाँ के जो रोडों की हालत है, लगभग 60% जो रोड्स है वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। दोनों तरफ आवाजाही नहीं हो पा रही है और प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है रोड को खोलने का। तो एक तरफा जो है कहीं ना कहीं आवाजाही शुरू की जाए, ये जो है प्रशासन का जो है प्रयास है। जो लोग निचले इलाके में रहते हैं कपिल, जहां पे नदी का उफान बहुत ज्यादा है, क्या उनको वहां से हटाने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है? एडवाइजरी का वो भी हिस्सा है? जी बिल्कुल, जो निचले क्षेत्रों में, क्योंकि जब जो नदियां हैं उफान पर जाएगी तो नीचे जब वो मैदानी क्षेत्रों में जाती है तो वहां जाकर जो है एक बाढ़ वहां पर आ जाती है, पानी भर जाता है और कई लोगों के घरों में भी पानी भरा है। तो ऐसे में लोग वहां से अपने घरों को छोड़कर जो है अपनी जान बचाने वहां से निकल रहे हैं और माल का काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन प्रयास ये किया जा रहा है कि जान का कम नुकसान हो, इसको देखते हुए प्रशासन लगातार उन लोगों को शिफ्ट करने में लगा हुआ है। और जो टीमें बनाई गई है, NDRF वगैरह की टीमें, वो यहाँ पर पहुंची है और रेस्क्यू लोगों को जो है लगातार किया जा रहा है। जी कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कपिल ठाकुर देयर reporting live from what is the situation like in Shimla. We were telling you about how the levels of the Beas River is now flowing above the danger mark, and because of which there has been a massive damage that has happened to the Shiv temple in the Summerhill area, and 9 bodies have been recovered unfortunately so far.